स्वागत है आप सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन लगने जा रहा है। जी हां, शासन ने यह फैसला लिया है कि भोपाल में 10 दिनों तक लॉकडाउन रखा जाएगा और यह लॉकडाउन रहेगा 24 तारीख से रात को 8 बजे से यह लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और 25 तारीख से सुबह से पूरा लॉकडाउन रहने वाला है। 10 दिनों का यह लॉकडाउन है। एमपी में कोरोना के लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और खासतौर पर राजधानी में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि आपको बताएं कि पहले भोपाल के कुछ इलाकों में, पुराने भोपाल के कुछ इलाकों में लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि पूरे भोपाल को ही लॉकडाउन किया जाएगा। 24 जुलाई की रात 8 बजे से 3 अगस्त तक यह लॉकडाउन रहने वाला है। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन। और सीधे चलिए, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। The US IBC on its 45th anniversary this year. Over the past decades, the US IBC has brought Indian and American business closer. US IBC's choice of this year's summit, Idea Summit, building a better future, is also very, very relevant. Friends, we all agree that the world is in need for a better future, and it is all of us who have to collectively give shape to the future. I firmly believe that our approach to the future must primarily be a more human-centric one. Our growth agenda must place the poor and vulnerable at the core. Ease of living is as important as ease of business. Friends, recent experience has taught us that the global economy has been too focused on efficiency and optimization. Efficiency is a good thing, but on the way we forgot to focus on something equally important, that is resilience against external shocks. It has taken a global pandemic to remind us how important resilience is. Friends, global economic resilience can be achieved by stronger domestic economic capacities. This means improved domestic capacity for manufacturing, restoring the health of the financial system, and diversification of international trade. Friends, India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. And for that, we await your partnership. Friends, today there is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities, and options.
Let me elaborate. India celebrates openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. Friends, during the last 6 years, we have made many efforts to make our economy more open and reform oriented. Reforms have ensured increased competitiveness, enhanced transparency, expand digitization, greater innovation, and more policy stability. Friends, India is emerging as a land of opportunities. Let me give you one example of the tech sector. Recently, an interesting report came out in India. It said, for the first time ever, there are more rural internet users than even urban internet users. Imagine the scale. There are about 500 million active internet users in India now. 500 million connected people. Does this sound huge to you? Hold your breath, because there are over 500 million more people who are being connected. Opportunities in technology also include opportunities in frontier technologies of 5G, big data analytics, quantum computing, blockchain, and Internet of Things. Friends, the options to invest in India are extensive. India invites you to invest in the hard work of our farmers. India has done historic reforms in the agriculture sector recently. There are investment opportunities in agriculture inputs and machinery, agriculture supply chain management, ready-to-eat items, fisheries, and organic produce. India's food processing sector is expected to be worth over $500 billion by 2025. To grow more streams of revenue, the best time to tap investment opportunities in Indian agriculture sector is now. India invites you to invest in healthcare. The healthcare sector in India is growing faster than 22% every year. Our companies are also progressing in production of medical technology, telemedicine, and diagnostics. India and the US have already built a robust partnership in the pharma sector. To achieve scale and speed, now is the best time to expand your investment in Indian healthcare sector. India invites you to invest in energy. As India evolves into a gas-based economy, there will be big investment opportunities for US companies. There are also big opportunities in the clean energy sector. To generate more power for your investment, this is the best time to enter the Indian power sector.
सुना कि प्रधानमंत्री यहाँ अपना संबोधन दे रहे थे और बता रहे थे कि भारत में कितनी सारी गुंजाइशें हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है भारत में, और कोरोना के बाद क्या परिस्थितियां बन रही है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है। 24 जुलाई की रात से 10 दिन के लॉकडाउन को लेकर उन्होंने अपील की है। भोपाल में कोरोना की स्थिति और नागरिकों के हित में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने लिखा है ट्वीट करके, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध जारी रहने वाली है। लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए और सावधानी बरती जाए, ये उन्होंने लोगों से भी अपील की है। तो भोपाल में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और नागरिकों के हित को देखते हुए हमने 24 जुलाई रात 8 बजे से 10 दिन के लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इस दौरान फल, सब्जी, दवाई, दूध समेत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी। और उन्होंने लिखा है कि मेरा अनुरोध है कि सभी नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। उधर लॉकडाउन की घोषणा के बाद भोपाल के बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल गई। लोग जरूरत का सामान खरीदते नजर आए। इसके साथ ही सरकार के फैसले को जनता ने सही ठहराया है। राजधानी भोपाल में 24 जुलाई की रात 8 बजे से पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। ये निर्णय सरकार ने लिया है क्योंकि लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानों पे भीड़ लगी क्योंकि सरकार ने लोगों से ये अपील की है कि वो 2 दिन में अपने जरूरत का जो भी सामान है वो खरीद ले और साथ में 2 दिन में यदि भोपाल में जो लोग बाहर के रह रहे हैं वो यहाँ से निकल जाए। तो इस तरीके के निर्देश दिए हैं। कुछ लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। सर, लॉकडाउन फिर से लग गया है शहर में। 24 तारीख की रात से लगेगा, सुबह से ये लागू हो जाएगा तो 10 दिनों तक रहेगा। सरकार ने कहा है कि अपनी जरूरत का सामान खरीद लीजिए। नहीं, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि अपना सामान पहले से लेके रखें, जिसमें कि परेशानी ना, या कोविड का अभी चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो कम से कम आप इतना सामान तो रहे कि कम से कम 20-25 दिन तो चले लोगों के पास। आप देख सकते हैं दुकान पे लगातार ग्राहक आ रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे। सर, ये बताइए, आप सामान खरीदने आए, आपको पता है कि लॉकडाउन लग रहा है 10 दिन का? नहीं पता अभी। 10 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। सरकार ने ये फैसला लिया है। 24 तारीख से लॉकडाउन लगेगा। रात को 8 बजे शुरू होगा और 10 दिन तक रहेगा। जरूरत का सामान लेने के लिए सरकार ने कहा है जी। लोग 2 दिन तक सामान तो ठीक है ना, अच्छी बात है। क्या लगता है कोरोना को सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई राजधानी भोपाल में? सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है। जनता को भी थोड़ा ये अपनी दूरी बनाकर रखना चाहिए। 2 गज की दूरी है, मास्क वगैरह है, और अगर सरकार लगा रही है लॉकडाउन तो अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ पे दुकानदार भी लगातार लोगों को सामान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ एकदम बड़ी है। सर, जैसे सरकार का फैसला है एकदम ग्राहक आपकी दुकान पे बढ़े हैं। हाँ, हम तो दूरी दूर रखते साहब, नहीं तो कहते आज नहीं है कल बाद में ले लेना। 3-4 से ज्यादा रखते हैं। कितना सही है क्योंकि एक इमरजेंसी लग जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये उससे भी होता है सर, तो ज्यादा लोग आने रहते हैं, लेकिन हम भी फिर भी डिस्टेंस के अलावा वो नहीं करते। जब तक आप डिस्टेंस रखोगे सामान। सरकार ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया है 10 दिनों का, वो ठीक है क्या? उचित तो सब पूरा ही रखना चाहिए कि जो सही हो। अब क्या ही कहीं खुली है कहीं बंद है, तो लॉकडाउन तो पूरा हो रहा है, सही है, लेकिन अब एकदम ज्यादा ये बढ़ रहा है, उसमें दिक्कत है। बिल्कुल, दुकानों पे आप देख सकते हैं पूरा मार्केट है 6.5 नंबर का। यहाँ पे लगातार जो दुकानें किराने की, उन पर एकदम भीड़ बढ़ी है। और क्योंकि लोगों को जैसे ही पता है कि 10 दिनों का लॉकडाउन लगने वाला है और 2 दिन का समय यहाँ। इधर राजधानी भोपाल में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में कोरोना के 157 नए मामले सामने आ गए। बढ़ते मामले को देखते हुए 10 दिन का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। 24 जुलाई से ये 10 दिनों का लॉकडाउन राजधानी में रहेगा। नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं जरूर जारी रहेंगी। दूसरी ओर ग्वालियर में दिन में लगे कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दे दी गई। अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक शहर खुला रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।
मनोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, हमने देखा बाजार का जायजा भी ले रहे थे, लोग इस लॉकडाउन को सही भी बता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक कदम जो उठाया गया ये मजबूरी में उठाया गया, क्योंकि हमने देखा कि बाजारों में जिस तरीके की भीड़ बढ़ रही थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, उसकी वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। लोग इसको सही तो ठहरा रहे, लेकिन जिम्मेदारी लोग नहीं समझ पा रहे, अभी भी लग रहा है क्या? जी बिल्कुल पुनीत, कल भी देखा गया था कि जिस तरीके से कई इलाकों में राजधानी में लॉकडाउन लगाया गया था, हालांकि पूरे शहर में नहीं लगाया गया था, लेकिन कल की जब समीक्षा की गई कि राजधानी भोपाल में इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया तो उसकी क्या स्थिति, मौजूदा स्थिति है, लेकिन हालात काबू नहीं कर पाया प्रशासन। यही कारण है कि अब पूरी तरीके से लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, क्योंकि जो तमाम जगहों पे जो भीड़ उमड़ रही थी बार बार, उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं प्रशासन फेल साबित हुआ। यही कारण है कि लोग लगातार लापरवाही कर रहे थे, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे, बाजारों में त्योहार की वजह से लगातार भीड़ बढ़ रही थी, और जो कंट्रोल है, क्राउड कंट्रोल में कहीं ना कहीं पुलिस असफल साबित हो रही थी, प्रशासन असफल साबित हो रहा था। यही कारण है कि सरकार ने जब समीक्षा की तो ये बात सामने निकल के आई है कि अब सख्ती से पालन कराया जाएगा, क्योंकि जो स्थिति है वो संभल नहीं रही है। यही कारण है कि अब 24 तारीख की रात को 8 बजे से टोटल लॉकडाउन का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। 3 तक ये लॉकडाउन रहेगा, 4 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, 10 दिनों लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इस दौरान सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि जो अति आवश्यक जो वस्तु है उनको ओपन किया जाएगा, चाहे वो औद्योगिक इकाई है वो लगातार खुली रहेगी, दवाओं की दुकान खुली रहेगी, सब्जी के जो ठेले हैं जो कि एक आम आदमी से जुड़ी हुई चीज है, उसको लेकर भी सरकार ने कहा है कि सब्जी के ठेले मोहल्ले में जाएंगे, सब्जी देंगे, दूध की दुकानें खुलेंगी। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। हालांकि दूसरे शहरों की बात करें तो वहां पर अभी समीक्षा की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। स्वागत है, खबर असरदार आप देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का हाल क्या है? तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर अभी भी देखने को मिल रहा है। 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे में जब समीक्षा की गई तो 237 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 70 नए मामले सामने आए हैं। सुकमा जिले से भी 36 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 116 मरीज हालांकि डिस्चार्ज भी हुए और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1709 हो चुकी है। कुल पीड़ित मरीजों की संख्या इसी के साथ 5968 हो चुकी है और कोरोना से 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राघवेंद्र, लॉकडाउन लगाया गया है और इस बीच आज पहला दिन था, लेकिन जो पुराने मामले जिनके सैंपल लिए गए थे 24 घंटे में जो मरीजों की संख्या बढ़कर सामने आई है वो बता रही है कि संक्रमण किस तेजी से फैला है। अब लॉकडाउन लगाया गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में मामले कम होंगे, क्योंकि हाल ही के जो संक्रमित जो लोग हुए हैं उनके तो पॉजिटिव आएंगे टेस्ट। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 6000 की संख्या हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, और यही वजह है कि लॉकडाउन जैसा कड़ा निर्णय लेना पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मार्केट में लोग बिना मास्क के नजर आते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो नजर नहीं आता। यही वजह है कि लॉकडाउन करना पड़ा है और 7 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। आज पहला दिन है, पुलिस ने सख्ती भी बरती है, कुछ लोगों को उठक बैठक कराया गया और सड़कों पर बेवजह निकलने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। जो जरूरत की चीजें हैं, फल सब्जी और दूध, इन्हीं चीजों को जरूरत की चीजों में शामिल किया गया है। इसके अलावा किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। तो ये सख्ती का प्रकार है कि लोगों को किराना सामान भी नहीं मिलेगा। उसके लिए 3 दिन पहले कलेक्टर द्वारा सूचना दे दी गई थी कि 22 तारीख से जो है लॉकडाउन किया जाएगा, और इस दौरान जिन लोगों को जरूरत का सामान चाहिए था वो लोग पहले से मार्केट से खरीद लिए हैं। यही वजह है कि कल मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ नजर आई थी और आज से लॉकडाउन किया गया है, तब जो है लोग सड़कों पर कम ही निकल रहे हैं और फिर भी कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो उन सभी को रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 33 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन पॉइंट्स पर पुलिस तैनात है और लोगों को जो है जांच किया जा रहा है, बिना वैलिड कारण के जाने नहीं दिया जा रहा है कहीं भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।